قاتل وائرس کی بات کریں تو کورونا وائرس سے مزید 41 مریض جاں بحق ہو گئے ہیں۔ عالمی وبا سے پاکستان میں انتقال کرنے والوں کی تعداد 10,717 تک پہنچ گئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 2,408 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور ملک میں فعال کیسز کی بات کی جائے تو ان کی تعداد 34,088 ہو گئی ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کورونا سے 2 کروڑ سے زیادہ افراد کا روزگار متاثر ہوا۔ حکومت نے صحت کے ساتھ لوگوں کے روزگار کو بھی مد نظر رکھ کر فیصلے کیے۔ پاکستان کی پالیسیوں کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔ مشکلات ختم ہونے والی ہیں، بس تھوڑا اور صبر کر لیں۔ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ دے رہے تھے۔ آپ سب سے یہ اپیل ہے کہ تھوڑا سا اور عرصہ رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے، حکومت نے بر وقت اچھے فیصلے کیے ہیں، عوام نے مدد کی ہے، میڈیا نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اس پیغام کو عوام تک پہنچانے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو کامیابی حاصل ہوئی ہے اور بہتری ہم نے دیکھی ہے، اس کے اوپر اب ہم نے آخری وقت میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بے احتیاطی شروع کر دیں اور ہم خدا نہ خواستہ جیسے دوسرے چند ممالک ہیں جہاں پہ ہم نے تیزی سے وبا کا دوسرا، کچھ ملکوں میں تیسری لہر بھی ہم نے دیکھی ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ افسوسناک خبر دیں کرک کے علاقے سے، جہاں پولیو ٹیم پر فائرنگ میں پولیس اہلکار شہید ہو گیا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ سما سے۔ بتائے گا کیا صورتحال ہے وہاں پر اور یہ واقعہ کیا ہے اصل میں؟ یہ آج صبح پولیو کے ٹیم کے دوسرے روز جنید پولیس اہلکار اور پولیو ٹیم میں تعینات افراد کے علاقہ گوڑی بانڈا میں یہاں پہ وہ گھر گھر جا کر پولیو مہم میں مصروف تھے۔ نامعلوم موٹر سائیکل سوار جو ہونڈا 125 پر سوار تھے ان پر فائرنگ کی، جس کے موقع پر جنید نامی پولیس اہلکار موقع پر شہید ہو گیا، جبکہ دیگر پولیو ٹیموں کے خواتین اور اہلکاروں نے گھروں کے اندر گھس کر واقعے کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے، جبکہ پولیس نے پورے علاقے کو محاصرے میں لیا اور سرچ آپریشن شروع کر دیے اور تاہم پولیو مہم جو ہے نا علاقے میں ملتوی کر دی گئی ہے۔ صحیح، ہمارے نمائندے خان ضمیر اس سے متعلق ہمیں بتا رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ پنجاب میں کہیں رضاکاروں پر حملے ہو رہے ہیں تو کہیں والدین پولیو مہم کے دوران بچوں کو قطرے پلانے سے منع کر رہے ہیں۔ مہم کے پہلے دن 297 بچوں کے والدین نے قطرے پلانے سے انکار کر دیا۔ بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے دانیال عمر سے۔ دانیال عمر، اب ان بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائے، اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ جی بالکل، پنجاب سے خوفناک ایک فگر سامنے آئی ہے جہاں پر جو پولیو کے قطرے ہیں ان سے متعلق غلط فہمیوں کی وجہ سے والدین نے انکار کیا ہے پولیو ٹیموں کو کہ وہ پولیو کے قطرے نہیں پلائیں گے۔ یہ 297 بچوں کے والدین ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے کل پولیو مہم کے پہلے روز پر، اور راولپنڈی میں تعداد سب سے زیادہ ہے انکاری والدین کی۔ 187 بچوں کے والدین نے قطرے پلانے سے انکار کیا ہے۔ اسی طرح لاہور کے 22 بچوں کے والدین نے قطرے پلانے سے انکار کیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے 9، اٹک کے بھی 9 اور بھاولپور اور لیا کے 7 بچوں کے والدین نے انکار کیا ہے پولیو کے قطرے پلانے سے۔ اور ان بچوں کو اب جو کیچ اپ ڈے ہوتا ہے، یعنی کہ 5 روزہ پولیو مہم کے بعد ایک دن ایسا رکھا جاتا ہے جب انکاری والدین سے بات کی جاتی ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، اس دن ان کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ دوبارہ رابطہ کیا جائے گا ان بچوں کے والدین سے۔ بہت شکریہ دانیال عمر آپ کا۔ اور لاہور میں آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کو قتل کرنے والا ملزم قانون کی گرفت میں آ گیا۔ آخری رائڈ لینے والے شخص نے قتل کا اعتراف کر لیا ہے۔ جہانگیر خان کی رپورٹ دیکھیے۔ رائڈ دوست نے بک کرا کے دی، لڑکی سے ملنا تھا، دیر ہوئی تو ڈرائیور نے گاڑی سے اترنے کا کہہ دیا، تلخ کلامی ہوئی تو گولی چلا دی۔ آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کے قاتل نے اعتراف جرم کر لیا۔ آن لائن ٹیکسی ڈرائیور محمد علی کے قاتل کو اس کے دوست محسن کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا۔ محسن نے اپنے دوست طاہر کو رائڈ بک کرا کے دی تھی۔ ملزم طاہر کے بیان پر پولیس نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ حقیقی وجوہات جاننے کے لیے مزید تفتیش جاری ہے۔ محمد علی کو 4 اور 5 جنوری کی رات قتل کیا گیا تھا۔ مقتول 2 سالہ بچی کا باپ تھا۔ جہانگیر خان، سما، لاہور۔ لاہور پولیس کی بروقت کارروائی سیشن کورٹ کے مرکزی گیٹ سے اسلحے کی بھاری کھیپ پکڑ لی۔ 7 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ سیکیورٹی انچارج مبشر اوان کے مطابق ملزمان سے کلاشنکوف 222 سمیت 5 پسٹل برآمد کیے گئے ہیں، جبکہ 1200 سے زائد گولیاں اور 15 میگزین بھی قبضے میں لے لیے۔ ملزمان سے تفتیش کے لیے تھانہ اسلام پورہ منتقل کر دیا گیا۔
आगे बढ़ें। उसामा सत्ती कत्ल केस की जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। 5 अहलकार कसूरवार करार दिए गए हैं। दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा चलाने की सिफारिश कर दी गई है। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। बेगुनाह नौजवान उसामा सती का इस्लामाबाद में अंधोनाक कत्ल। जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ATS के 5 एहलकार कसूरवार निकले। मुल्जमान के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत मुकदमा चलाने की सिफारिश। जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि मुतलका SP और DSP ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जुडिशल इंक्वायरी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राना मोहम्मद वकास ने की। रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करा दी गई। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि ATS एहलकारों की तैनाती कारकर्दगी और माहिर नफ्सियात की राय की बुनियाद पर होनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मॉनिटरिंग का निजाम कमजोर है। वायरलेस रिकॉर्ड अहम शवाहिद होता है। IG निजाम की बेहतरी के लिए इकदामात करें। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ATS एहलकारों को फोर्सेज के साथ मिलकर काम करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। एहलकारों की खिदमत SP की मंजूरी के बगैर भी नहीं ली जानी चाहिए। रावलपिंडी में 18 साल लड़की की गोली लगी लाश मिली। हुमैरा ने 6 माह कबल पसंद की शादी की थी। ससुर ने दामाद पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी। उमर आसिफ की रिपोर्ट। रावलपिंडी के इलाके ढोक चौधरिया में 6 माह कबल उरूसी जोड़ा पहनने वाली हुमैरा को कफन उड़ा दिया गया। 18 साल हुमैरा की अदनान से पसंद की शादी हुई, फिर लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। मोहब्बत नफरत में बदली और अंजाम मौत। हुमैरा को पेट में गोली लगी और कमर से निकल गई। मकतूला के बाप ने वाक़े को कत्ल करार दे दिया। ये 2 महीने से बच्ची के तरीके मुझे धमकियाँ देता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, और बच्ची को इसने मारा है। मुझे तो इंसाफ चाहिए, बस मुझे मेरे बच्ची के कातिल ये है जी। मुलजिम अदनान का बाप भी कत्ल के खदशे से इनकारी नहीं। उसने डराने के लिए किया होगा, डराने से हकीकत बन गई है। मकतूला के वालिद की दरख्वास्त पर कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुलजिम अदनान को गिरफ्तार करके थाना एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या कत्ल का था या खुदकुशी का, पुलिस के मुताबिक इसका तयन फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। कैमरामैन राहील कुरैशी के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। और अब लाहौर का रुख करें, जहां ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड की बड़ी वारदात हुई। एक ही रोज में निजी बैंक के 16 सारिफीन लुट गए। रियाज अहमद की रिपोर्ट। रियाज अहमद की रिपोर्ट आपने देखी, उन्हीं से बात भी कर लेते हैं। रियाज, लाहौर में ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड की बड़ी वारदात, ऐसे में बैंक अमले ने हैकिंग का शुबा जाहिर किया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि तकरीबन 16 के करीब जो लोग हैं जो है वो इसमें लुट चुके हैं। ये जो बैंक अमला है उनका ये कहना है कि ये जो उनके जो अकाउंट है वो हैक हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने फौरी तौर पर जो है मुख्तलिफ अकाउंट से पैसे लाखों रुपए निकाले हैं। इसमें बहुत सारे लोग थे, इसमें बुजुर्ग भी थे जिनकी पेंशन भी थी, कुछ खवातीन थी जिनको बाहर से उनके जो है बेटे या भाई पैसे भेजते थे जिससे उनका गुजारा होता था, वो तमाम पैसे निकाल लिए गए। लेकिन बैंक का ये कहना है क्योंकि ये हैक हुआ है और हैकर जब ये हैक करते हैं तो उनके लिए मुश्किल होता है उनको ट्रेस करना। लेकिन ये जरूर है, उनका ये कहना था कि हम कोशिश करेंगे कि इनके पैसे जल्द से जल्द इनको वापस लौटा दें। और जो लोग वहाँ पे थे वो खासे परेशान थे। उनका ये कहना था कि हमारे ATM हमारे पास है, हमारे चेक बुक हमारे पास है, इसके बावजूद हमारे पैसे निकल जाना। उनका ये कहना था कि बैंक की जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो हमें काफी बताते हैं कि हमारे वहाँ पर दिखाई दिए। बहुत शुक्रिया रियाज अहमद, अपडेट किया आपने। और सिंध हाई कोर्ट में विफाक और सूबे में मेडिकल एंट्री टेस्ट का तनाज़ा। अदालत ने PMC के जवाब पर दरखास्त गुजारों के वकला से जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में सिलेबस से हटकर सवालात के खिलाफ तलबा की दरखास्त की समाअत हुई। तलबा के वकील ने अदालत को बताया कि दरखास्त गुजार तलबा टेस्ट में पास हो चुके हैं। टेस्ट में 28 सवालात में गलतियों की निशानदेही की गई है। इस हवाले से हम तफसीली जवाब दे चुके हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ग्रेस मार्क्स के रूल्स में तब्दीली और सिलेबस के मामले का जायजा लेंगे। समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी मेडिकल टेस्ट में फेल तलबा के एहतजाज की हकीकत सामने आ गई। कराची में सिंध असेंबली के बाहर धरने में कोई मजदूर निकला तो कोई सोशल वर्कर। सवाल इतने मुश्किल थे कि उम्मीदवार भूल ही गए। अहमद रहमान खान ने धरने पर बैठे लोगों से बात की तो क्या जवाबात मिले, आइए सुन लेते हैं। सिंध के मेडिकल स्टूडेंट्स ने सिंध असेंबली के बाहर धरना दिया है। इनका कहना है वफाक के ज़ेरे इंतजाम जो मेडिकल टेस्ट लिया गया वो गैर निसाबी था। आए तो इस धरने की असल हकीकत आपको दिखाते हैं। टेस्ट में क्या सवाल थे? मैंने नहीं दिया था। मैं समाजी वर्कर हूँ, मैं पढ़ा नहीं हूँ। टेस्ट में अपेयर नहीं हुए? मैं झूठ नहीं बोलूँगा। क्या सवाल थे, कोई याद है सवाल आपको? नहीं सर, वो इतने मुश्किल थे कि याद तो नहीं है मुझे। तो एक सवाल तो बताया ना सर, इतना याद ही नहीं था अभी। हमने मुनक्किद किया है भूख हड़ताल की जो कैंप है 2 दिन की। कौन कौन से ऐसे सवालात हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं? देखिए सवालात तो
कहाँ से टेस्ट दिया था आपने? भाई हम टेस्ट के लिए नहीं आए, ये सारे हमारे सिंध के जितने भी अपना शागिर्द हैं। नहीं, आपने टेस्ट दिया था? नहीं दिया? नहीं, हमने टेस्ट नहीं दिया भाई, हम एक मजदूर है, हम इनकी हमायत के लिए आए हैं। स्टूडेंट हमारे पास कोई भी नहीं। इसके बेटे अफेयर हुए थे, क्या नाम है उनका? फवाद। ये कहा जा रहा है ना गैर निसाबी सवाल थे। हाँ हाँ, एक सवाल तो बताएं तो गैर क्या? मैंने वो तो नहीं पूछा, लेकिन उसने जब ये कहा, जब एक मेन चीज़ है ना, कोई सवाल एक ऐसा बता सकते हैं जो आपको याद हो कि वो गैर निसाबी था? नहीं इस तरह से वो मैंने उससे पूछा भी नहीं। जब एक रिजल्ट जब आया है। क्यों आए यहाँ पे? सर ये बिल्कुल नाजायजी के लिए आए हैं, कश्मीर से हम तो आए, बच्चों के साथ नाजायजी हो रहा है सर। ये जो तालीम इदारे बंद है, क्या वजह है आमद की? मेडिकल टेस्ट का बताएं ना। मेडिकल नहीं आती। आप स्टूडेंट नहीं है? स्टूडेंट नहीं है आप लोग नहीं है। कहाँ से टेस्ट में अपेयर हुए थे आप? पहली बात तो मैं शागिर्द नहीं हूँ, हम उन शागिर्दों के लिए निकले हैं जिनके साथ नाइंसाफी हुई है। आपको उन लोगों ने कुछ बताया कि सवालात क्या आए थे ऐसे? वो तो हमारी डिटेल हमारे लोगों के पास पड़ी है। मेडिकल स्टूडेंट्स के नाम पर अगर धरने में शरीक इन लोगों को दाखिले मिल गए तो यकीन करें मुझ समेत शायद आप भी डॉक्टर से इलाज तो नहीं कराएंगे। कैमरामैन फैसल अगाई के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। आगे बढ़े। कराची में FIA साइबर क्राइम की शहराय फैसल पर कायम दफ्तर में कार्रवाई मुकम्मल हो गई। FIA ने रिकॉर्ड और टेक्निकल शवाहिद अपने कब्जे में ले लिए हैं। ज़राए के मुताबिक एक मुलाजिम को भी हिरासत में लिया गया है। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज, क्या क्या शवाहिद हासिल किए हैं साइबर क्राइम विंग ने? देखिए बिल्कुल, ये गुज़िश्ता शब साइबर क्राइम विंग की जानिब से कार्रवाई की गई थी। एक बिजनेस एवेन्यू में रेड की गई थी। अब ये रेड जो है मुकम्मल कर ली गई है। FIA साइबर क्राइम के जो एहलकार और अफसरान थे वो 12 घंटे तक बिजनेस एवेन्यू में मौजूद रहे थे। वहाँ से टेक्निकल शवाहिद जो है, जो हमारे ज़राए बताते हैं कि वहाँ से रिकॉर्ड और टेक्निकल शवाहिद जो है अपने कब्जे में लिए गए हैं, जबकि एक मुलाजिम को भी वहाँ से हिरासत में लिया गया है। जो हमारे ज़राए बताते हैं कि कंपनी के बैनुल-अक़वामी मशकूक राब्तों के हवाले से इस कार्रवाई को अमल में लाया गया था। ताहम जो है अभी जो है कार्रवाई का सिलसिला जो है अब मुकम्मल कर लिया गया है, शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। हमारे FIA काम से बात में बताना है कि निजी कंपनी के जो मुख्तलिफ रोड पर कायम दफातर हैं वहाँ पर जो मौजूद कंप्यूटर्स हैं उसकी भी जांच पड़ताल की गई है, जबकि जो मुलाजमीन हैं उनसे भी जो इस बारे में कुछ पूछा गया है। सही, बहुत शुक्रिया शाहनवाज। बागों के शहर की बात कर रहे हैं जो अब वैसा ना रहा। लाहौर में एक माह से कचरा साफ ना हो सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी के ढेर ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। अंदरून लाहौर हो या पोश इलाके, हर तरफ कचरे के ढेर नजर आते हैं। आजकल लाहौर बागों का शहर कम और कचरे की डंपिंग साइट ज्यादा लगता है। वज़ीर आला पंजाब ने एक बार फिर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को अल्टीमेटम दे दिया है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक शहर की सड़कों पर अब भी 30,000 टन से जायद कचरा मौजूद है। शहरियों ने कचरा न उठाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। यहाँ पे इतना गंद है कि हम आपको क्या बताएं, स्मेल इतनी है, गंदगी इतनी है, कुछ नहीं हम बता सकते। घरों में भी गंद पड़ा हुआ है, कोई नहीं उठाता। कंपनी थी वो डेली उठाती थी, आप इधर को 8वें दिन को 7वें दिन बाद उठाता है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने एक बार फिर दावा किया है कि रवा हफ्ते शहर का सारा कचरा साफ कर दिया जाएगा। रिपोर्टिंग और कैमरा टीम के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। दावे दावे ही रहे, 4 रोज तो क्या कई हफ्ते गुजर गए, लाहौर की सफाई ना हुई। शहर के बेशतर मकामात पर अभी भी कचरे के ढेर हैं। हमारे रिपोर्टर्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त मौजूद है। दानियाल उमर हमें गुलशन रावी और दानियाल सत्तार टाउनशिप से हमें ज्वाइन करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले दानियाल उमर की जानिब बढ़ते हैं जो गुलशन रावी में मौजूद हैं। दानियाल, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तो बहाने ही बनाती रही। पहले कहा कि टर्किश कंपनी की रेड लाइन खत्म हो गई इसलिए कचरा नहीं उठाया जा सका, फिर दीगर इदारों की मदद मांगी गई। लाहौरियों को कब तक ये अजाब सहना पड़ेगा आखिर? जी बिल्कुल, एक माह से जायद का वर्षा गुजर चुका है अब, लेकिन लाहौर से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कूड़ा उठाने में बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है। आज वो दिन है जब से एक क्लीनिनेस ड्राइव शुरू की जा रही है और कल वज़ीर आला पंजाब ने मियाँ असलम इकबाल जो कि वज़ीर हैं इंडस्ट्रीज़ के, कॉमर्स के, उनको ये हिदायत की है कि आप लाहौर की सड़क
ٹھیک ہے، دانیال عمر ہمیں گلشن راوی کی صورتحال بتا رہے تھے، اور لاہور کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہے۔ جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور کئی ہفتے ہو گئے ہیں لاہور کی صفائی اب تک نہیں ہو سکی ہے۔ دانیال ستار کی جانب جاؤں گی جو کہ ٹاؤن شپ پر اس وقت موجود ہے۔ دانیال بتائیے گا یہاں پر کچرے کی کیا صورتحال ہے، صفائی ہوئی یا نہیں؟ جی، لاہور میں صورتحال ابھی تک وہی ہے۔ میں اس وقت ٹاؤن شپ کے علاقے میں موجود ہوں، اور یہاں پر بھی میں جب آیا ہوں تو یہاں پر سڑکیں، چوک جو ہیں، یہاں پر جو ڈیوائیڈر ہیں دونوں روڈز کے درمیان میں، وہاں پہ بھی بہت زیادہ کوڑا مجھے دیکھنے میں نظر آیا ہے۔ میں نے یہاں پر جب علاقہ مکین اور یہاں پر جو کیونکہ رہائشی علاقہ بھی ہے اور ساتھ یہاں پر دکانیں بھی ہیں، میں نے جب ان لوگوں سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ بہت مشکل ہے یہاں پر رہنا، اسمیل آ رہی ہے اور یہاں پہ بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یکم جنرل WMC نے یہ چارج سنبھالا تو انہوں نے ان کو 2 دفعہ نوٹسز لیے اس کے اوپر، لیکن جو ہے یہاں سے کچرا جو ہے وہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں تو لاہور کو جو 52 ڈریم ڈیسٹینیشن ہے اس کی لسٹ میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر کون آئے گا یہاں پر ڈیسٹینیشن کے لیے، کون آئے گا یہاں پر ٹورزم کے لیے؟ کیا امیج لے کر جائیں گے اگر لاہور کا یہی صورتحال رہی؟ جو کمشنر لاہور ہیں انہوں نے بھی ان کو ایک تجویز یہ دی تھی جو LWMC ہے کہ آپ جس طرح بقرہ عید پہ 3-4 دن کا گرینڈ آپریشن کرتے ہیں اس طرز پہ ایک آپریشن کریں اور لاہور کو بالکل صاف ستھرا کر دیں، لیکن جو افسران ہیں ان کے کانوں میں جو تک نہیں رینگی، اور یہاں پہ جو علاقہ مکین ہے، یہاں پر جو دکاندار ہیں وہ اس وقت اتنا پریشان ہیں اور صرف وہ ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ لاہور جو اتنا خوبصورت لاہور ہے وہ کب صاف ہوگا، یہ بتا دیں بس۔ صحیح، شہری انتظار کر رہے ہیں کہ صاف ستھرا اور خوبصورت لاہور آخر کب پہلے کی طرح واپس صاف ہوگا اور کب لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اپنے فرائض پورے کرے گی۔ بہت شکریہ دانیال ستار، آپ ٹاؤن شپ سے ہمیں بتا رہے تھے، اور گلشن راوی سے دانیال عمر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پاکستان میں بجلی کے بریک ڈاؤن کی اصل وجہ کیا رہی اور ہفتے کی رات کیا ہوا؟ تمام پاور سٹیشن اچانک بند کیسے ہو گئے؟ جانتے ہیں اپنے رپورٹر وہاب کامران کی رپورٹ میں۔ چلیں بھائی ریکارڈنگ شروع کریں۔ پریشان مت ہوں، بجلی نہیں گئی بلکہ سوئچ آف ہو گیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ہفتے کی رات 11:15 بجے بجلی کیوں گئی۔ سندھ کا گڈو تھرمل پاور پلانٹ جو 2402 میگا واٹ بجلی بناتا ہے، ہفتے کی رات بھی یہی سپلائی نیشنل گرڈ میں شامل ہو رہی تھی، لیکن 11:41 پر ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے فریکوینسی مس میچ ہوئی۔ 50 ہرٹز پر رہنے والی فریکوینسی 54 تک پہنچی۔ عملے نے کوشش کی 50 سے نیچے لانے کی، لیکن پھر چند سیکنڈ میں یہ فریکوینسی 0 تک گر گئی۔ یہاں سے سپلائی آگے جانے سے رک گئی۔ تقریباً 2400 میگا واٹ کا لوڈ قریب موجود پاور سٹیشنز پر آیا اور وہ اتنا لوڈ سنبھال نہ سکے۔ پاور سٹیشن ایک کے بعد ایک بند ہونا شروع ہوئے اور سیکنڈز میں ہی تقریباً بجلی سپلائی 10,500 میگا واٹ سے گر کر 0 پر آ گئی۔ ملک میں کوئلے اور گیس پر چلنے والے 30 پاور پلانٹ سے بجلی کی پیداوار رک گئی۔ ایک وجہ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ٹرانسمیشن لائنز پر موجود کنڈکٹرز کو دھند سے بچانے کے لیے ان پر کوڈنگ نہیں کی گئی۔ دھند جو غیر موصل ہوتی ہے وہ کنڈکٹرز میں داخل ہوئی، جس سے ٹرانسمیشن لائنز کو بجلی ترسیل نہ ہو سکی اور ملک کئی گھنٹوں تک اندھیرے میں ڈوبا رہا۔ سب سے پہلے سپلائی تربیلا پاور ہاؤس کے 3 یونٹس کو بحال کی گئی۔ 8 گھنٹوں میں تقریباً 50% پاور پلانٹس دوبارہ کھل چکے تھے۔ اس ساری نااہلی کا ذمہ دار 7 چھوٹے ملازمین کو قرار دیتے ہوئے نوکری سے نکال دیا گیا اور انکوائری بٹھا دی گئی۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور وادی لیپا میں برف باری سے اہم رابطہ سڑکیں گزشتہ کئی روز سے بند ہیں۔ وادی لیپا میں سڑکوں کی بندش کے باعث انسداد پولیو مہم بھی ملتوی کر دی گئی ہے، جبکہ وادی نیلم میں انسداد پولیو ورکرز برف باری والے علاقوں میں پیدل پہنچ کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا رہے ہیں۔ حکام کے مطابق سڑکیں کھولنے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ سے متصل شابان کے علاقے میں شدید سردی ہے، پانی کا بہتا چشمہ جم کر برف میں تبدیل ہو گیا ہے۔ مجیب اللہ کی رپورٹ میں دیکھیے۔ سائبیریا کی یخ بستہ ہوائیں بلوچستان تک آن پہنچی۔ پہاڑی سلسلوں پر سرد ہوائیں چلیں تو پانی کی بہتی آبشار جم کر برف میں تبدیل ہو گئی۔ قدرت کے حسین نظارے کوئٹہ سے متصل شابان کے پہاڑی سلسلے میں دیکھے گئے۔ خون جمع دینے والی سرد ہواؤں کے سبب پہاڑوں پر بہتی آبشار کا پانی جم کر برف کی شکل اختیار کر گیا، جو سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ مجیب اللہ، سما، کوئٹہ۔ اور کراچی میں برف باری، درجہ حرارت -8۔ حیران رہ گئے نا آپ؟ لیکن جناب یہ سب ہو رہا ہے PF میوزیم کے ونٹر لینڈ میں، جہاں بچے اور بڑے خوب موج مستی کر رہے ہیں۔ ریحان احمد رپورٹ کریں گے۔
मुल्क के शुमाली इलाके बर्फबारी के बाद मजीद सर्द हो गए, वहीं कराची वाले भी इससे बिल्कुल महरूम नहीं। पीएफ म्यूजियम में विंटरलैंड नामी स्नो थीम पार्क के सर्द माहौल में बच्चों के साथ बड़े भी गर्म कपड़े पहनकर सैर करते हैं। इस दौरान कोरोना SOPs का ख्याल भी रखा जाता है। विंटरलैंड के अंदर पारा -8 तक गिर जाता है, जो कराची वालों को स्कर्दू और गिलगित की वादियों में पड़ने वाली ठंड का एहसास देता है। 1 घंटे के सेशन के दौरान बर्फबारी होती रहती है और सैर करने वाले दिल खोलकर राइड्स के मजे लेते हैं। कराची में अगर आपको सही में ठंड महसूस करनी है तो आप यहाँ आके कर सकते हैं। हमें यहाँ पर बहुत मज़ा आया, मतलब कि इतनी अच्छी जगह बनी हुई है कि पाकिस्तान में भी ऐसी जगह है। चीनी माहिरीन के बर्फ से तैयार करदा मुजस्मे, किला और पाक चीन दोस्ती की अलामत JF-17 लड़ाका तैयारे का मॉडल यहाँ आने वालों को हैरान कर रहे हैं। वो बच्चे जो इस दफ़ा कोरोना की वजह से नहीं जा सके पाकिस्तान टूर पे, उनके लिए विंटरलैंड कराची किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। एहतसाब के शिकंजे समेत क्रिकेट की खबरों पर भी करेंगे बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा के बारे ने आरे सूबाई वज़रा को मुफ्त बिजली, गैस और टेलीफोन की सहूलत देने की तैयारी कर ली गई है। इस हवाले से बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। जी सज्जाद हैदर, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की वज़रा की मराज बढ़ाने के लिए जो है बिल जो है तैयार कर लिया गया है। बिल का नाम खैबर पख्तूनख्वा सरकारी मुलाजमीन अलाउंस इस्तेकाक तरमीमी एक्ट 2021 है, जो कि असम्बली में पेश किया जाएगा। बिल के तहत जितने भी सूबाई वज़रा है उनके घर के जो है बिजली, टेलीफोन और गैस के बिल जो है वो जो है अब हुकूमत जो है अदा करेगी। उसके लिए जो है इन्होंने कानून साजी मुकम्मल कर लिया, ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसमें जो बताया गया है कि महकमा एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनके तमाम जो है खराजात घर के बिल के वो अदा करेगा। सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद हैदर। लाहौर के एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जारी है। नैब के गवाह रीजनल टैक्स ऑफिस के एडमिन अफसर मोहम्मद शरीफ का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। केस की समाअत शुरू हुई तो जज जवादुल हसन ने कहा कि कमरा अदालत में 20 से ज़ायद लोग ना हो। शहबाज शरीफ रोस्ट्रम पर आ गए और फाजिल जज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपके हुक्म से मेडिकल बोर्ड आ गया। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने चिन्योट वाले मामले का फिर जिक्र छेड़ दिया। जज ने कहा इस अदालत में ये केस नहीं है, यहाँ आपने अपने केस का दिफा करना है। जिस पर शहबाज शरीफ बोले मैं दिफा ही कर रहा हूँ, बदनीयती होती तो इस मुआहदे को ना छेड़ता। नैब की बात कर ले, जिसने ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ महंगे दामों ट्रेनों के इंजन खरीदने की इंक्वायरी बंद करने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन नैब हतमी मंजूरी देंगे। समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी से बात करते हैं। अब्बास नकवी, बताइएगा। जी बिल्कुल, ख्वाजा साद रफीक के लिए एहतसाब ब्यूरो से एक अच्छी खबर सामने आई है। नैब ने ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ लोकोमोटिव महंगे दामों खरीदे जाने की इंक्वायरी बंद करने का फैसला किया है। जराये का ये कहना है कि DG नैब लाहौर ने तफ्तीशी टीम की इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश की रिपोर्ट चेयरमैन नैब को भिजवा दी है और चेयरमैन नैब इंक्वायरी बंद करने की हतमी मंजूरी देंगे। जबकि इसके अलावा नैब जराये का ये भी कहना है कि ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर पर 4000 से 4500 हॉर्स पावर महंगे दामों खरीदने के इल्जामात थे और पाकिस्तान रेलवे को 20 से ज्यादा लोकोमोटिव की जरूरत नहीं थी। शिकायत गुजार ने ये भी कहा था कि ख्वाजा साद रफीक ने जरूरत से ज्यादा लोकोमोटिव खरीदने की मंजूरी दी। इस हवाले से शिकायत गुजार का ये भी कहना था कि जरूरत से ज्यादा लोकोमोटिव की खरीदारी का मकसद किक्स बैक हासिल करना था, लेकिन अब इस इंक्वायरी को नैब की जानिब से बंद करने का फैसला किया गया है। सही, बहुत शुक्रिया अब्बास नकवी। कराची में महमूदाबाद नाले पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई जारी है तो दूसरी तरफ औरंगी टाउन नाले के अतराफ रहने वाले भी गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। इस वक्त वहाँ मौजूद है समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम, उनसे बात कर लेते हैं। खुर्शीद, बताइएगा यहाँ कितने मकानात जद में आ रहे हैं? जहाँ बिल्कुल एक जानिब महमूदाबाद नाले पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है तो दूसरी जानिब औरंगी नाला और सादकाबाद नाले के अतराफ़ रहने वाले भी इसी बेयकीनी का शिकार हैं कि किसी भी रोज़ वहाँ पर कार्रवाई शुरू की जा सकती है। मैं इस वक्त औरंगी टाउन 11:30 चिश्ती नगर में मौजूद हूँ और ये कैमरामैन इमरान शाहिद आपको दिखाएंगे कि ये सादकाबाद नाले का वो हिस्सा है जिसके दोनों तरफ मकानात बने हुए हैं और नाला कचरे से पूरी तरह भर चुका है। और यहाँ पर जो मार्किंग की गई है उसके मुताबिक यहाँ पर 1000 से ज़ायद ऐसे मकानात हैं जो इस कटाई के ज़ुमरे में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो निशानात लगाए गए हैं वो नाले के 100 फुट
दोनों जानिब कटिंग की जाएगी। यहाँ के लोगों का कहना है कि 45-50 साल से यहाँ की आबादी है, गरीब तबके की आबादी है, कम आमदनी वाले लोग यहाँ पर रहते हैं और अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दूसरी जानिब लोगों ने जब रब्ता किया था NDMA से तो उन्होंने ये यकीन दहानी कराई थी कि जिनके लीज़ मकानात हैं उन्हें 2 लाख रुपए नकद अदायगी की जाएगी और इसके अलावा मुतबादिल जगह दिया जाएगा उनको। जो ज़िम्मेदार ज़राए हैं उनका यही कहना है कि इस ऑपरेशन को महमूदाबाद के बाद मुख्तलिफ इलाकों में जो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत हैं उसके मुताबिक अंजाम दिया जाएगा। जी। औरंगी टाउन से खुर्शीद आलम हमें बता रहे थे। अब कराची के इलाके महमूदाबाद में नाले के अतराफ कायम तजावुजात के खात्मे के लिए दूसरे मरहले पर जो ऑपरेशन जारी है उसकी बात करते हैं। तो ऑपरेशन की मजीद सूरत हाल क्या है ये बताएंगे सलमान अहमद। सलमान बताएगा कहाँ तक पहुँचा है ऑपरेशन। देखिए, महमूदाबाद नाले के अतराफ कायम पक्के तजावुजात के ख़ात्मे के लिए जो ऑपरेशन किया जा रहा है आज दूसरे मरहले का दूसरा रोज़ है। एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से हैवी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है जिसके ज़रिए तजावुजात का ख़ात्मा किया जा रहा है, जबकि मज़दूर भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि 2 से 5 फीट जो तजावुज़ कर चुके हैं जो जगह हैं उनको जो है वो हथौड़ों के ज़रिए गिराया जा रहा है, जबकि पुलिस की नफरी भी यहाँ पर इनकी जो है वो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊँ कि एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से ये बताया गया है कि अब तक मजमूई तौर पर तकरीबन 2 किलोमीटर का रकबा है जहाँ से तजावुजात का खात्मा किया जा चुका है। मजमूई तौर पर 7 किलोमीटर का रकबा है जहाँ पर तजावुजात कायम हैं। 57 मकानात ऐसे हैं जो ज़्यादा मुतासिर होंगे जिनके लिए हुकूमत की जानिब से भी मदद की जो है यकीन दहानी कराई गई है, जबकि 180 दुकानें और मकानात ऐसे हैं जो तकरीबन 2 से 5 फीट तजावुज़ कर चुके हैं अपनी हद से, जिनको जो है वो गिराया जाएगा, उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी। सलमान अहमद ने अपडेट किया और अब आपको बताएं कि हरकत में बरकत है, ये कहावत कराची के नौजवानों ने सच कर दिखाई। नाज़िमाबाद में इंतजामी नाअहली का शिकार गली का नक्शा ही बदल दिया। मकीनों ने तबाहाल गली को मॉडल स्ट्रीट बना दिया। जमजम सईद की रिपोर्ट। कराची का इलाका नाज़िमाबाद नंबर 4 20 बरस से जो गली कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही थी उसे इलाके के नौजवानों ने मॉडल स्ट्रीट में तब्दील कर दिया। मोहल्ले के नौजवानों ने खुद इस बदबूदार गली को संवारने का बेड़ा उठाया। दीगर लोगों को साथ मिलाकर पहले कचरा ठिकाने लगाया, फिर खवातीन, बच्चों और बड़ों सब ने मिलकर दीवारों को खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन किया। बच्चे बीमार होते थे, आने जाने में बच्चों को प्रॉब्लम, बराबर में उसका बिल्कुल गेट था और उसके साथ ही बिल्कुल मस्जिद भी है। कचरा जलता रहता था, सारा धुआं स्कूल में जाता था, तो बच्चे छोटे छोटे भी थे, हॉस्पिटल भी है। इलाका मकीनों का कहना है कि अब गली से गुजरते हुए खुशगवार एहसास होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बहुत कचरा कुंडी थी, यहाँ से उस गली से लेकर यहाँ तक। देन मेरे यहाँ पे सेंटर भी पड़ा था क्लास 9 में और यहाँ पे इतनी गंदी बदबू होती थी कि कोई हद नहीं। नौजवानों का अज़्म है कि वो शहर के दीगर इलाकों की सड़कों को भी साफ सुथरा बनाएंगे। शहर कायद में कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जो हुकूमत से शिकवे शिकायतों के बजाय अपने हिस्से की शमा जलाकर अपना काम पूरा करते हैं। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। माँ के हाथ का बना खाना किसे पसंद नहीं होता। रावलपिंडी की दुकानों पर भी माँ के हाथ का बना खाना खाया जा रहा है। उमर आसिफ की रिपोर्ट। खाने के ऑर्डर की सदाएं लगाती रावलपिंडी की नासरा नवाज। हुलिया सादा सा, उम्र 70 की और हिम्मत गजब की। घर में लजीज खाने बनाकर मार्केटों में पहुंचाने वाली नासरा हर दुकानदार के लिए माँ जी हैं। मार्केट में बैठे बिठाए घर के ताज़े पकवानों के मजे उड़ाते दुकानदार कहते हैं अम्मा नासरा से जायकेदार खाबों के साथ हौसला भी खूब मिलता है। माँ जी को देख के हम लोग खुद अपनी हिम्मत पकड़ लेते हैं। बारिश भी नहीं देख रही, धूप छाँव कुछ भी नहीं देख रही। खाना शाना तो अच्छा होता है, काफी डिशेस होती है इनके पास। वैसे तो 3-4 बनाती है रोज की, मगर जो भी अच्छा लगा वो खा लेते हैं। उम्र की अदायगी और अपना घर अम्मा नासरा की सबसे बड़ी ख्वाहिश। 4 साल से घरेलू जायकों को दुकानदार बेटों की फरमाइश का तड़का भी खूब लगा रही है। माँ जी घर की वाहिद कफील भी हैं और इंतहाई खुददार भी। मांगने से बेहतर है कि अपना काम जारी कर ले, ठीक है। मेहनत का खाना, अजमत का खाना, तो घर का भी हिसाब किताब करती हूँ। अम्मा नासरा बाइज्जत गुजारा होने पर हर वक्त रब की शुक्रगुजार भी रहती हैं। लजीज खाने मुहैया करने वाली माँ जी का कहना है हिम्मत और मेहनत से काम करने में शर्म कैसी। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी।